Please welcome the dynamic and ever-inspiring Mr. Guru Nandan Singh, National Award by Honorable President of India and Shark Tank fame. Passionate trainer and a coach with over 30 years of experience, including 23 years in corporate leadership and over 10 years as an entrepreneur. Sir now dedicates himself to enhancing human lives through cognitive fitness, counseling, and corporate trainings as he talks on fitness and how it drives peak performance in every area of life. So, okay, was it fine earlier as well? Okay, great, thank you. So, I want to ask you a question. Although all organs of our body are very important, what do you think, which is the most important organ in your body? Now, are you saying this because you have just read about me or you just spoke about me? Or how many of you think heart is most important? Okay, no, I knew that. Okay, 3, 4. And how many of you say brain? Okay, still 7, 8. What about the rest? Who didn't raise hand for even heart or brain? Both are important. Okay, my next question. Which is the most powerful organ of our body? Definitely brain. Thank you, JDG. So, brain is the organ which controls our thoughts, our actions, our senses, internal organs and external limb. हम पलक भी नहीं झपक सकते अपनी बिना ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के, राइट? सो ब्रेन इज दैट इम्पॉर्टेंट. तो चलो ब्रेन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. एक दो क्वेश्चन राउंड और कर लेते हैं आपके साथ. तो हम ब्रेन को कितना जानते हैं? हम बॉडी के लिए तो फिटनेस के लिए, मैं थोड़ा साइड पे हूँ, एग्जांपल मत लेना मेरे को, पर यहाँ पे बहुत फिट, यहाँ पे बहुत बॉडी से फिट लोग भी हैं. तो बहुत सारे लोग योगा करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं. पर ब्रेन के लिए हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं. बादाम खाते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं. रिसर्च सेज, जैसे आज सुबह शहरी पाजी प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे, ओनली 1% पीपल आर पेड स्पीकर्स और ट्रेनर्स इन दिस वर्ल्ड, राइट? सिमिलरली रिसर्च सेज लेस देन 1% पीपल इन इंडिया डू मेडिटेशन, राइट? सो if you are one of those 1%, congratulations to you. What about rest? Yes. इसके पीछे कारण है. देखो, there is always a reason behind things and there are root cause analysis जैसे हम बोलते हैं, RCA, right? कि हम अपने ब्रेन के बारे में अवेयर ही नहीं है. अगर मैं आज आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लूँ ब्रेन के बारे में, right? I am sure most of the people won't have those answers and very simple questions. We all know that brain has neurons. Everybody knows that. How many neurons? How many billion, trillion, whatever figure is in your mind? Sorry? 80 billion, you are close to it? Okay, so it's little less, you have surpassed it. So the medical fact says that every child in this world comes with 100 billion neurons. 100 billion neurons. And as in today, when I and you speak to each other, right, 86 billion neurons are in active mode, average, you know, and 14 billion neurons are in dormant state. कभी मरता नहीं है न्यूरॉन, unless until आपकी सर्जरी हो रही है या कुछ ब्रेन ट्यूमर है, उस टाइम डेफिनेटली कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव मोड में रहते हैं, राइट? तो इन 14 बिलियन न्यूरॉन्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो तो सो रहे हैं, राइट? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देन आई विल कम टू माय रियल टॉपिक. हमारा ब्रेन का लेफ्ट और राइट 2 हेमिस्फीयर है ब्रेन का. चलो मैंने डिस्क्लोज कर दिया आपको, राइट? सो जैसे हमारी लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर है, इसी तरह से हमारे ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है. सो एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट डज लेफ्ट हेमिस्फीयर डू एंड व्हाट डज राइट हेमिस्फीयर डू? यस सर. वेरी नाइस. Very good, very nice. So let's clap for him. कंजूसी है क्लैप में, क्यों भाई? सर ने राइट आंसर दिया. Everybody, right? So the left hemisphere of the brain is for number, logic, reasoning, calculation, analysis, and right hemisphere of the brain is for creativity, art, imagination, emotion, and music. Both are important. Another medical fact that one hemisphere of the brain is more dominant, like one of your hand. If you are a right-handed person, और आपको कल सुबह बोल दिया जाए लेफ्ट हैंड से एग्जाम देना है, आई एम श्योर एवरीबडी विल क्विट इवन बिफोर अटेम्प्टिंग इट. ये कैसे पॉसिबल है?
मैं बचपन से राइट हैंड से लिखता आया हूँ या लिखती आई हूँ, हाउ कैन आई गिव एग्जाम विद माई लेफ्ट हैंड? सिमिलरली हम दोनों हाथों से काम करते हैं, एक हाथ हमारा एक्टिव और मेन रहता है, दूसरा सपोर्ट में रहता है। इसी तरह से हम एक हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन से काम करते हैं, एक बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रांग रहता है, दूसरा सपोर्टिव रोल में रहता है, पर वो कभी उभर के नहीं आता। तो इस मेडिकल फैक्ट को चैलेंज किया डॉक्टर मकातो शिशिदा ने जापान से, और उन्होंने बोला क्या हो, व्हाट इफ आर बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन गो टू द बेस्ट ऑप्टिमाइज लेवल, अगर दोनों हेमिस्फीयर बेस्ट ऑप्टिमाइज लेवल पे काम करें तो क्या हो? So the research said, if it is done properly, mark my words, if it is done properly, minimum 300% or 3 times, you can enhance your brain capabilities. With what? With your learning ability, जो कि आज की डेट में बहुत important है, with your thinking ability, then again innovation is the world today, right? With your learning ability, thinking ability, creativity. तो रंजीत सर उस टाइम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, सर ने IQ, EQ, SQ, HQ के बारे में बात की। CQ is also another quotient, which is creativity quotient, right? So your learning ability, thinking ability, creativity, memory and concentration. Now concentration, my God, बचपन से हम एक ही वर्ड सुनते आए हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। बच्चे थे हम बेचारे छोटे, अभी हम स्कूल भी नहीं जा रहे थे, जैसे कोई घर में फ्रेंड आ गया या रिलेटिव आ गया, बेटा अंकल को सुनाओ वो पोएम, बेटा अंकल को वो पोएम सुनाओ, आपने सीखी थी ट्विंकल ट्विंकल, सुनाई थी सबने, और आज अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ बच्चों को क्या करने के लिए बोल रहे हैं? परफॉर्म, द चाइल्ड हैज टू परफॉर्म, राइट? और अगर बच्चा नहीं सुनाता तो वो रिलेटिव होता कोई नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, पर माँ बाप को बहुत बुरा लगता है, इसने सुनाया कैसे नहीं, बाद में डांट पड़ती है ना, बाद में डांट पड़ती है, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस से उनकी इंसल्ट जुड़ी हुई है, यहाँ उनका सक्सेस जुड़ा हुआ है, ठीक है? और ओके चलेगा? No, actually I need my hands to be free. Yeah, okay. I need my hands to be free. अभी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चा हमारा परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाने लग गया, अब स्कूल में भी परफॉर्मेंस, भैया आपको टॉप आना है, आपको टॉप 3 स्टूडेंट, टॉप 5 स्टूडेंट, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, राइट? अब बच्चे पे प्रेशर, ठीक है? अभी तक तो पोएम का स्ट्रेस था, अब स्कूल में नंबर का भी स्ट्रेस शुरू हो गया। चलो जी थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ तो बोर्ड एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम सबसे बड़ा हुआ ना। मैंने जीवन में कभी बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस लिया ना अपनी दोनों बेटियों को दिया, ठीक है? पर ये बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है? माय वाइफ इज एजुकेशनिस्ट, उसके लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ नहीं, ठीक है? पर एनीवे बोर्ड एग्जाम बच्चे ने पास किया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर प्रेशर, फिर परफॉर्मेंस हर किसी को चाहिए परफॉर्मेंस, नहीं तो लाइफ में क्या होगा, ये जीवन में क्या करेंगे, ये जीवन में क्या करेगा, इसका क्या बनेगा, बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रेशर है, बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ठीक है? और नेक्स्ट जब बच्चा बड़ा हुआ तो जॉब में फिर परफॉर्मेंस, अब बॉस को परफॉर्मेंस चाहिए आपसे, आपको प्रमोशन चाहिए तो परफॉर्मेंस चाहिए। सो परफॉर्मेंस पैदा होने के इमीडिएट बाद से लेके जब तक हमारा तो सुबह बोला था ना राम नाम सत्य नहीं हो जाता, तब तक परफॉर्मेंस 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 चाहिए। परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू योर सक्सेस इन लाइफ। अब ये परफॉर्मेंस और सक्सेस का जो मैच है, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है कंसंट्रेशन पावर। क्या आप लाइफ में कितना कंसंट्रेट कर पाते हो? यस और नो? एकाग्रता, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, एकाग्रता, राइट? इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं इंपॉर्टेंट है? रेज ऑफ योर हैंड। ओके, व्हाट डज रेस्ट ऑफ द पीपल थिंक? ये ऐसे आशीर्वाद देते बिल्कुल चाहिए आपसे, पर क्वेश्चन का आंसर ऐसे चाहिए। हाउ मेनी यू थिंक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट? वेरी नाइस, थैंक यू। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। अवेयरनेस ही प्रॉब्लम है ना? हनुमान जी को पता ही नहीं था वो उड़ सकते हैं, पर जब पता चला तो उन्होंने करामात कर दी। तो सिमिलरली आई एम हियर टू शेयर फ्यू ब्रेन योगा एक्सरसाइजेज विद यू। आर यू विद मी? श्योर? ओके, सो माय रिक्वेस्ट, देखो एक और मेडिकल फैक्ट है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। क्रिस्टॉस चलता है, ठीक है जी? अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए राइट साइड पे तो लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट होगा, और अगर किसी को लेफ्ट साइड पे पैरालिसिस हो जाए तो राइट ब्रेन में क्लॉट है, राइट? और आप ये सोचो कि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर हाथ पैर काम करना बंद हुआ है तो प्रॉब्लम हाथ पैर में नहीं है,
प्रॉब्लम ब्रेन में है. सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट. तो चलिए सब, एवरीबडी प्लीज ज्वाइन मी. एवरीबडी कैन यू प्लीज पुट योर हैंड्स लाइक दिस. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई इट आउट. ठीक है. सो माई लेफ्ट ब्रेन इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू माई राइट हैंड टू ओपन द पिंकी फिंगर. तो ये पिंकी प्रॉमिस जो अपने बच्चों से करते हो आप, बोली फिंगर खोलनी है, राइट हैंड की पिंकी फिंगर. एंड माई राइट ब्रेन इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू माई लेफ्ट हैंड टू ओपन थंब. अंगूठा खोलना है. एक हाथ की उंगली, एक हाथ का अंगूठा. अरे वाह, एवरीबडी इज एबल टू डू. वेरी नाइस, 100% रिजल्ट. गुड. गुरुनंदन इज अ गुड टीचर है, गुड ट्रेनर. ओके, नहीं गिरूंगा नीचे, डोंट वरी. सो अभी दोनों ब्रेन इंस्ट्रक्शन को इंटरचेंज करेंगे. तो जो पिंकी फिंगर खुली है वो बंद होगी, उस हाथ का अंगूठा खुलेगा, और जिस हाथ का अंगूठा खुला है वो बंद होगा, पिंकी फिंगर खुलेगी साइमल्टेनियसली लाइक दिस. ओके, ट्राई, जस्ट डू इट. क्या हो गया? अरे क्या हुआ? ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है, ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है. सो हेंस इट प्रूव्स माय अर्लियर स्टेटमेंट दैट वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज मोर डोमिनेंट द अदर वन. तो दोनों ब्रेन जब इकट्ठे एक साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है. एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, आपको लग रहा होगा गुरुनंदन ने फ्लू खेल दिया. ओके, लेट्स ट्राई अनदर एक्सरसाइज. सो विक्ट्री, सब फोटो खिंचवाते हैं विक्ट्री बना के, है ना, विक्ट्री, ये. ओके सर, विक्ट्री आउटसाइड. तो विक्ट्री इज फॉर द वर्ल्ड, राइट. सो बाहर सर, ऐसे हाथ घुमा दीजिए. यस, विक्ट्री आउटसाइड. एंड दिस इज द पॉइंटर. Few of them call it gun also. So single barrel gun, है ना. So this is pointer. So what again the brain will interchange the instruction. Pointer will become victory and victory will become pointer. Okay, do it. Do it. Again confusion. क्या हुआ? ये तो सिंपल है, विक्ट्री और पॉइंटर का ही तो गेम है. हो गया, वेरी नाइस. अंगूठा बंद करना है. 80% हो गया, बट गुड, दैट्स अ गुड स्कोर. वेरी नाइस. ओके, चलो एक लास्ट एक्सरसाइज और कर लेते हैं, राइट, बिफोर आई शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, हमारे राइट हैंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉरवर्ड. तो एक हाथ आगे कीजिए सब, बहुत बढ़िया, यहाँ भी 100% रिजल्ट. और दूसरा ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है बैकवर्ड, ऑपोजिट. तो एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, साइमल्टेनियसली, एक साथ. दोनों आगे आ रहे हैं सर, दोनों पीछे जा रहे हैं सर. वेरी नाइस, वेरी गुड सर. यस, यू कैन डू इट. सर दोनों पीछे जा रहे हैं आपके साथ वाले बैठे हुए. तो ये क्या हो रहा है? सिंपल इंस्ट्रक्शन. नहीं हो रहा ना? हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. हो गया तो पैट योर बैक, राइट. वेरी नाइस, यू हैव डन अ गुड जॉब, राइट. सो बेसिकली ये मेडिकल फैक्ट है कि हमारा एक हेमिस्फीयर ब्रेन का ज़्यादा डोमिनेंट है. But there are 30+ such exercises which are known as brain yoga, which can actually enhance your neuron working. और वो जो 14 बिलियन डॉर्मेंट हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको ये जगाने का काम करती हैं एक्सरसाइजेस. क्योंकि वो हमारा अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं. डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उन्होंने, अगर डॉक्टर गार्डनर नहीं पढ़ा तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है. He is still teaching with Harvard. He talks about 8 different multiple intelligence of a human being that talks about interpersonal, interpersonal, mathematical, logical, creative, linguistic, musical, naturalist and kinesthetic. तो सुबह जब बात हो रही थी लर्निंग स्टाइल की, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर, देयर इज अ थर्ड लर्नर स्टाइल दैट इज काइनेस्थेटिक लर्नर. कुछ लोग देख के सुनते हैं सीखते हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग लिख लिख के या चल के सीखते हैं, राइट. सो ये सारे हमारी लर्निंग स्टाइल्स को इन्हांस करती हैं ये एक्सरसाइजेस. सेकेंडली, वेरी ब्रीफली आई वांट टू टच अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू द ब्रेन, विच इज़ नोन एज मेमोरी. आप में से कितनों को लगता है मेरी मेमोरी तो बिल्कुल पुअर है, मज़ा नहीं आया, लाइफ में कुछ याद ही नहीं रहता या भूल जाता हूँ जल्दी? अच्छा, किसी को नहीं लगता? एवरीबडी इज हैविंग एक्सीलेंट. अच्छा, कुछ ईमानदार लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, वेरी गुड. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मेरी एक्सीलेंट मेमोरी है, मतलब बल्ले बल्ले फट्टे चक मेमोरी है ना, जो मर्जी याद करवा लो. आप सबका टेस्ट लेने वाला हूँ मैं इस सेशन के बाद, ठीक है. ओके, कितनों को लगता है एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छी ना बुरी, ये मैक्सिमम है ना लोग, ना? फिर आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, ठीक है. ट्रेनिंग देखो, लेट मी टेल यू, अ गुड ट्रेनर, आप सब यहाँ ट्रेनर्स हो या ट्रेनर बनने की एस्पिरेशन रखते हो तो हमेशा ऐसे आशीर्वाद होता है, ऐसे हाथ खड़ा किया जाता है,
ठीक है, तो आपकी जो मेमोरी है, जितने लोगों ने बोला ना एवरेज है, एक्चुअली वो सब शर्म कर रहे थे ये बोलने के लिए कि पुअर है, ठीक है. बट लेट मी गिव यू गुड न्यूज, देयर इज नो गुड बैड एवरेज पुअर मेमोरी, इट इज अ ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी. मेमोरी इज ट्रेनेबल, उसके 3 पिलर्स होते हैं. आज मैं और ज़्यादा लंबे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मे बी जब शहरी पाजी मेरे को नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा टाइम देंगे तो आई विल स्पीक अबाउट इट. 3 मेमोरीज के 3 पिलर्स होते हैं. वन इज 3 आवर्स, जब जैसे शहरी पाजी ने सुबह 3 पीस बताए थे ना, दैट वॉज योर यू नो व्हाट वाज इट. पहला फर्स्ट वॉज स्पीकिंग के लिए PR था, पैशन था, और पहला था प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन, पोजिशनिंग, यस, पोजिशनिंग, PR एंड योर पैशन इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, है ना. तो इसी तरह से मेमोरी के 3 R's हैं. रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, रिटेंशन यानी कि अवधारण, एंड रिट्रीवल, रिकॉल यानी याद आना. बहुत सारी चीज़ें हम याद तो करते हैं, याद, अरे यार याद नहीं आ रहा, ये था ऐसा, मैंने चाबी कहाँ रख दी, याद नहीं आ रहा, तो वो रिट्रीवल है. ठीक है, तो 3 पिलर्स हैं, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिट्रीवल. रजिस्ट्रेशन हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं. हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में जब डालते हैं, या तो हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, या सुनते हैं, या टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं. एम आई राइट? ये 5 तरीके हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में डालने के लिए. पर उसको रोक के रखने के लिए, ठीक है, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज़ करते हैं. अब कमाल यही है, गड़बड़ यही होती है 90%, जो हम चीज़ें भूल जाते हैं. क्यों नहीं लंबे समय तक याद रहती? क्योंकि हम कॉन्शियस ब्रेन से रटने की कोशिश करते हैं. हम क्या करते हैं, देखते हैं और बोलते हैं, देखते और बोलते हैं, देखते और बोलते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर हम सबकॉन्शियस ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे, जो कि 90% है. इट्स वेरी पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन, राइट. एंड थर्ड इज रिट्रीवल, याद आना. वो हमारे राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन से कनेक्टेड है, रिट्रीवल, जो कि मैंने आपको बताया था, क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, म्यूजिक. आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, यू विल रेजोनेट विद इट. 4 दिन पहले हमने क्या खाया, क्या पहना, नहीं याद. 4 महीने पहले आपका बर्थडे था, आपने अवतार लिया था उस दिन इस दुनिया में, ठीक है, ये आपकी एनिवर्सरी थी, राइट. कहाँ गए, कैसे सेलिब्रेट किए, क्या कपड़े पहने, किससे मिले, सब याद है. इमोशंस, इमोशंस आर राइट ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर. सेकेंड, आपका फेवरेट सॉन्ग का म्यूजिक बजते ही आपको उसके लिरिक्स याद आ जाते हैं. यस और नो? आ जाते हैं ना. क्यों? क्योंकि म्यूजिक इज अगेन विद कनेक्टेड विद द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. तो जो हमारा रिट्रीवल है वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है. तो जब भी आपने किसी चीज़ को याद करना है, रट्टा मारने की जगह आप अपनी उसकी रजिस्ट्रेशन पे, रिटेंशन पे और रिट्रीवल पे काम करो. रिटेंशन पे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बेस्ट तरीका है काम करने का, योर इमेजिनेशन एंड योर क्रिएटिविटी. अगर हम अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा दें, जैसे सुबह गार्गी बात कर रही थी, राइट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की, अगर हम अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा दें और क्रिएटिविटी को बढ़ा दें तो हमारा रिटेंशन बेटर हो जाएगा. तो अगर हमारा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है, रिटेंशन अच्छा है, और रिट्रीवल अगर हम इमोशंस के साथ, किसी भी चीज़ को इमेजिन करो तो इमोशंस के साथ इमेजिन करो, उसको अपने किसी इमोशन के साथ जोड़ो, गा के याद करो, म्यूजिक के साथ जोड़ो, बी वेरी इनोवेटिव एंड यू विल रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. And I'll just take your leave. Thank you so much. It was wonderful interacting with all of you. Thank you so much.